Good morning, students. I welcome you all at Suraj School, Mahendragarh. In previous lectures, we have discussed our topic, the human eye, its different parts, and the working of the human eye, how image is formed. And after that, the persistence of vision and power of accommodation. These topics are discussed already. Today, we discuss the defects which are created or which are produced in our eyes due to some weakness or ciliary muscles or eye lens. ठीक है. Today we will discuss the defects of vision of human eye. There are three defects of vision in a human eye. Three defects of vision in human eye, due to which different type of problem in a human being has occurred to see the objects clearly. We can discuss these three types of defects of vision one by one. सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये डिफेक्ट्स होते किस वजह से हैं. ठीक है. तो these common defects are also known as refractive defects of vision. These are also known as refractive defect of vision or optic defects or optical defects. We can also call them optical defects because these defects occur due to the light. The object cannot be seen clearly. That's why these are known as refractive defect, because our eye lens does not form the image of the object on retina. That's why these type of defects occur. This is due to the action of ciliary muscles or action of eye lens or the object, the position of the object. Okay, so we can discuss the defects one by one. First defect is myopia. Myopia, or the further name is myopia is short-sightedness. It is also known as short-sightedness. Second defect is hypermetropia. Hypermetropia, which is also known as long-sightedness. Which is also known as long-sightedness. Okay. The third defect is presbyopia. The third defect is presbyopia, or this is also known as old sight. This defect of vision is also known as old sight. Okay. This defect is also known as old sight. These three types of defect occur in our human eye, or we can discuss all these defects by one. Okay. First of all, we discuss the myopia. The defect myopia. How it occurs? With the help of ray diagrams. With the help of diagram, we can understand the defect. How can it can be occurred? How a normal eye can see the object at that position. Okay. तो डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं वो हम एक एक करके डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डिफेक्ट मायोपिया, which is also known as short-sightedness. Okay. तो मायोपिया, जैसे कि आप इसका नाम जो है शॉर्ट साइटेडनेस, अब हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जो नाम है वो काम भी है. जैसा चीज को बताया जा रहा है वैसा यहाँ पे काम भी हो रहा है. ठीक है. तो जैसा यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि नाम क्या है यहाँ पे, शॉर्ट साइटेडनेस. ओके. तो शॉर्ट साइटेडनेस इन द सेंस जो पर्सन विच इज डिफेक्टेड फ्रॉम मायोपिया, इट कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. he can see or he or she can see the objects nearby clearly, but he cannot see the object which are placed far apart in the sense they are placed at a long distance.
or we can say that at infinity. Okay, क्यों इन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट. ओके, तो फारेस्ट पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे जैसा इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, वो काम यहाँ पे हो रहा है और उसके अपोजिट जो काम है वो नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज द डिफेक्ट ऑफ विजन, is the defect of vision of human eye. It is the defect of vision, defect of vision of human eye, of human eye, of human eye, due to which a person can see nearby objects clearly, nearby objects clearly, but the far apart objects, cannot be seen clearly. Okay, तो nearby objects जो person है which has the defect myopia, he can see the nearby objects clearly, but he cannot see the far off objects clearly, or we can say that the objects which are placed at infinity. Okay, the person which is suffering from myopia, he has no problem in reading and writing. A person has no problem in reading and writing. उसको रीडिंग और राइटिंग करने में, जैसे हम कहें कि हम कोई बुक है वो रीड कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी जो नियर साइट है वो बिल्कुल क्लियर है, वहां पे वो ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं है. बट वी कैन से दैट इन ड्राइविंग, ओके, तो इट हैज प्रॉब्लम इन ड्राइविंग, problem in driving, because in driving we see the far apart objects, or which cannot be seen clearly by a myopic person. Okay, how can these defects occur? What is the cause of occurring of this defect? The causes of myopia, or a short sightedness. ठीक है, what are the causes? The cause मतलब किस कारण से उसको ये डिफेक्ट हो रहा है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को पर्सन है वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है. तो ये डिफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है उसको? तो फर्स्ट पॉइंट इज द पर्सन whose eyeball, the structure of eye we can discuss in our first lecture. Okay, so the size of eyeball increases, so we can write that increase in the size of eyeball, okay. The increase in the size of eyeball, it means the distance between eye lens and retina. Okay, the distance between eye lens and retina increases. Okay, तो सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है. तो हम अब कहते हैं कि आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, तो हिज डायमीटर साइज इंक्रीजेस, तो डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस. Okay, the second point is due to the increase in the size of eyeball, the light rays which fall on our eye lens converges
in front of retina, converges in front of retina, they does not go to the retina. रेटिना के ऊपर वो नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही वो लाइट रेज क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि आई बॉल का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज हो गई हैं, रेटिना तक तो पहुंच ही नहीं पाई है, तो इसलिए हमारी इमेज है वो हमें दिखाई, ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इमेज उसकी रेटिना के ऊपर फॉर्म होनी चाहिए। सेकेंड कॉज क्या है इसका, व्हाट इज द सेकेंड कॉज, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ओके, हमें दो चीजें यहां पे याद रखनी है, आई बॉल का साइज इंक्रीज हो रहा है और जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है। वो क्यों डिक्रीज हो रही है फोकल लेंथ आई लेंस की, उसमें क्या हो गया कि जब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो जो हमारी हम कहेंगे सिलेरी मसल्स, ओके, वो फुली रिलैक्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो फुली जब वो आप कहेंगे कि जो आई लेंस है वो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे थिक हो जाता है, ठीक है। तो थिक हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और फोकल लेंथ जब डिक्रीज होगी तो उसकी पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज, बिकॉज द इनवर्स रिलेशन इन पावर एंड फोकल लेंथ, power is inversely proportional to focal length, so there is inverse relation between power and focal length decreases when power increases. That's why the light rays converge in front of retina, to better understand this defect we can understand with the help of diagram carefully. अब हम डायग्राम की हेल्प से इसका जो है केस मायोपिया की कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, किस तरीके से फॉर्म हो रही है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल जो पर्सन है जिसको कोई भी डिफेक्ट नहीं है, जिसका विजन बिल्कुल करेक्ट है, तो वो किस टाइप से ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है। ओके, फॉर नॉर्मल आई वी कैन ड्रॉ इट एज ओके। हम इसमें लेबलिंग नहीं करेंगे क्योंकि लेबलिंग हमने ह्यूमन आई में पूरा लेबलिंग और उसके फंक्शंस हमने पढ़ लिया है, तो हम सिंपली डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। ओके, विदाउट लेबलिंग वी कैन नो दैट दिस इज कॉर्निया, आई लेंस, दीज आर सिलेरी मसल्स और दिस इज रेटिना वेयर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी फॉर्म्ड। ओके, तो फॉर नॉर्मल आई when you see the object placed at infinity or near about infinity, the light rays come to the eye, these are approximately parallel to each other. Okay, because the eye lens is convex lens, that's why eye lens is a convex lens, that's why it is also known as a converging lens, or it converts the light rays at a single point, or the point is on retina where image is formed, sharp image of the object is formed, image for normal eye. This is the case of normal eye. Okay, first case. Second case, we can discuss the second case for defected eye, for the defected eye, or we can say that the myopic eye, for the myopic eye. Okay, for myopic eye, when it see the object placed at infinity, the light rays
the light rays at infinity come to the eye lens और eye to the जो person है उसकी जो लाइट रेज उसमें आ रही है आई लेंस पे, उस पे जो कन्वर्ज होके, वो कन्वर्ज होने के बाद क्या हो रहा है, किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर जो रेटिना के सामने है, एग्जैक्टली ऑन रेटिना नहीं है, वो क्या है, रेटिना के सामने है। ओके, this is known as myopic eye. The first point we say that the increase in the size of the eyeball. तो आई बॉल का जो साइज इंक्रीज हुआ उसकी वजह से लाइट रेज रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं हुई, जैसे कि वो नॉर्मल आई में हो रही थी, ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ज हो गई है लाइट रेज। ओके, इसकी वजह से उस पर्सन को जो फार अपार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, नाउ अब उसे फार अपार्ट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, बट उससे थोड़ा सा अगर हम आगे आ रहे हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सपोज करो दिस इज एट इन्फिनिटी, यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, बट हम जब इससे थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो इस पोजीशन के ऊपर उसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आ रहे हैं तब वहां पे उसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो उस केस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे नहीं दिख रहा, बट इन्फिनिटी से थोड़ा पहले उसको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज मायोपिक आई, मायोपिक आई। ओके, so we can discuss the far apart point here. हम इसमें दोनों केसेस रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने सेकंड केस रिप्रेजेंट किया है ये भी हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय डॉटेड लाइंस, और जहां का उसे जिस पॉइंट का, जिस फार पॉइंट का उसे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, वो भी हम इसमें इसी में कंबाइन करेंगे दोनों। ओके, ये केस हो गया हमारा सेकंड वाला कि डिफेक्टेड आई के लिए वो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जिस फार पॉइंट का उसे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, सपोज करो दिस इज द फार पॉइंट वेयर हियर यू कैन सी द इमेज, this is known as far point. We represent the far point by capital F, or this distance is known as x. This distance is known as x. The distance of far point of myopic eye. The distance of far point of myopic eye at which the person can see the object clearly. Okay, or the image is formed for this position exactly on the रेटिना, एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। ओके, तो सेकंड लास्ट केस में हम इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, जिस पर्सन को ये डिफेक्ट है तो उस चीज को ठीक इस तरीके से किया जा सकता है। तो बाय यूजिंग करेक्टिव लेंस वी कैन कर दिस डिजीज। ओके, तो बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को यूज करके हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज आई लेंस। ओके, तो हियर वी कैन डिस्कस द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, light rays coming from infinity. Okay,
little bit these light rays, because the concave lens is a diverging lens. Concave lens is a diverging lens which diverges the light rays little bit and fall to the lens. We can say that when the light rays passes from this, they diverges like that. That's why they little bit diverge and they fall to the convex lens of the eye, and after that they converge to the point on the retina where clear image of the object is formed. So this is known as corrective eye, corrective myopic eye. Okay. दिस पॉइंट इज नोन एज फार पॉइंट, और ये डिस्टेंस हमने बताया था ये क्या है हमारा x. ओके. तो हमने कहा था डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम हो गई है, जिसकी वजह से उसकी पावर इंक्रीज हो गई थी. पावर इंक्रीज होने की वजह से रेटिना के सामने लाइट रेज कन्वर्ज हो गई थी. तो ये हो गया. और दूसरा आई बॉल का साइज है वो बढ़ गया था. ठीक है. तो दोनों कॉजेज इसके थे. करेक्ट हम किससे करेंगे? द डिफेक्ट मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग concave lens which is a diverging lens of suitable focal length or a suitable power can be used to correct this defect. Okay. How can we find the focal length or a power of a lens to be used for a particular person? तो focal length x क्या है हमारा यहाँ पे? far point, the distance of far point of myopic eye, distance of far point of myopic eye. Okay. और f is the focal length of the lens. F is, that's small f, focal length of the lens to be used for the correction of this defect. Okay. The formula for the lenses, we can say that the lens formula is 1 upon में f is equal to 1 upon b minus 1 upon u, or here u is minus infinity. U is infinity, or we can say that, or v is minus x. V is minus x where image is formed. V is minus. These are negative, taken as negative due to the sign convention, lens sign convention. Okay, put the values here. 1 upon minus x is equal to minus 1 by infinity. This will become 0. This value becomes 0. So we can write it as 1 upon में f is equal to minus 1 upon x. Again we can write it as, reverse the relation, f is equal to minus x. F is equal to minus x. So we can say that the focal length of concave lens used for the correction of myopic eye is equal to the distance of far point of myopic eye. फोकल लेंथ, जिस फोकल लेंथ का यहाँ पे लेंस यूज होगा उसकी फोकल लेंथ किसके इक्वल होगी? जो डिस्टेंस है फार पॉइंट का मायोपिक आई के लिए, उसी के इक्वल उसकी क्या होगी? उस लेंस की फोकल लेंथ होगी. उसी से फिर हम उसकी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय 1 by f. ओके. तो दिस रिलेशन से हम उसकी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं लेंस की. तो दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट which is known as myopia. Now we discuss the second defect of vision which is known as hypermetropia. The second defect of vision is hypermetropia or long sightedness. Okay. Hypermetropia or a long sightedness.
जैसे इसका नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, ये काम यहाँ पे हो रहा है और इसके अपोजिट जो काम है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी far off objects clearly, but nearby objects does not seen clearly. ओके, जो पर्सन है उसको दूर की चीजें तो क्लियरली दिखाई दे रही, चाहे आप इन्फिनिटी तक उसको कैसे भी दिखाइए, वो सारी ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली दिख रहे हैं, बट उसको जो पास के और चीजें हैं वो क्लियरली नहीं दिख रही है। एक नियर पॉइंट है जहां से उसके बाद उसको चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो नियर पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर, और इट इज ऑल्सो नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके, विच इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पर्सन है, हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन है, उसको इस डिफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो रीडिंग और राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कहें कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से रीड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिंपल इस पोजीशन पे अगर वो पढ़ रहे हैं तो नहीं रीड कर पा रहे हैं, बट इसी को ऑब्जेक्ट को ऐसे करके देखेंगे तो वो क्लियरली रीड कर पा रहे हैं। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। आपने देखा होगा कुछ पर्सन है जब वो मोबाइल फोन यूज करते हैं तो पास में ऐसे देखते हैं, उठा रहे हैं तो उनसे ऐसे रीड नहीं हो, मतलब उसको नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली उसके अंदर जो भी है, बट वो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे पकड़ेंगे मोबाइल फोन को और ऐसे देखते हैं, जिसका मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, उसको वहां पे देखने में कोई ना कोई दिक्कत है। तो नियर पॉइंट क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, नियर पॉइंट क्या हो गया उसका बढ़ गया है। ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है। ओके, तो इस डिफेक्ट का कोज क्या है, व्हाट इज द कोज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट? द कोज इज फर्स्ट, जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होगा उसकी जो आई बॉल का साइज होगा, आई की जो बॉल है उसका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल। सेकेंड वन, आई बॉल के साइज का डिक्रीज होना इन द सेंस जो आई लेंस है, आई लेंस और रेटिना दोनों के बीच का साइज पहले इतना था तो अब वो कम हो गया है। ठीक है, तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज होने की वजह से जो लेंस लाइट रेज को कन्वर्ट कर रहा है, हमारा आई लेंस जो है कन्वेक्स लेंस, तो वो जो लाइट रेज को जो कन्वर्ट कर रहा है तो वो कन्वर्ज वहां पे नहीं हो पा रही है उस पॉइंट से आगे, वहां वो थोड़ा डाइवर्जिंग है, और तो आगे जाके हम ऐसा सपोज करते हैं कि आई बॉल के बाहर जाके वो कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट के ऊपर, बट ऐसा होता नहीं है, तो वो इमेज फॉर्म नहीं हो पाती है उसकी वजह से। ठीक है, सेकंड, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। वो कैसे इंक्रीज हो गया फोकल लेंथ उसकी, क्योंकि हमारी जो आई लेंस है उसमें जो सिलेरी मसल्स है वो लेंस को क्या कर देती है कि जो लेंस है हमारा वो थिन हो जाता है, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पावर ऑफ अकोमोडेशन में हमने पूरा पढ़ा था। ठीक है, तो फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उसकी वजह से लाइट रेज रेटिना पे कन्वर्ज ना होकर उससे बियॉन्ड कहीं जाके वो कन्वर्ज हो रही है। ओके, तो दीज टू आर द डिफेक्ट्स कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। नाउ with the help of diagram we can understand this. First, for a normal eye to see the nearby objects, okay, to see the nearby objects for a normal eye, this is our near point where object is actually present. This is the near point where object actually is present, or this distance is known as D, least distance of distinct vision, D, small d. This is for normal eye where image is formed. Normal eye. Okay. Now we discuss the diffracted eye. Second one,
वी डिस्कस द डिफेक्टेड आई, तो इमेज अगर रेटिना पे नहीं बन रही है तो उस पर्सन को फिर वो अगर बन रही है तो दिखेगा फिर ऑब्जेक्ट, अगर वो रेटिना के ऊपर नहीं बन रही तो कैसे नहीं बन रही है इमेज। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। Light rays converges beyond retina, but in myopia they converge in front of retina, but in hypermetropia they converge beyond retina. So this is known as diffracted eye or hypermetropic eye. Hypermetropic eye. Okay, hypermetropic eye in which image लाइट रेज कन्वर्ज बियॉन्ड रेटिना, रेटिना से पीछे जाके लाइट रेज कहीं कन्वर्ज होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो वो कन्वर्ज हो ही नहीं रही है, उनके बीच में गैप है, तो ये हमें ऐसा अज्यूम है कि वहां वो रेटिना से बाहर जाके कहीं कन्वर्ज होंगी, मिलेंगी किसी पॉइंट के ऊपर। ओके, तो दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, आई बॉल का साइज छोटा हो गया इसलिए लाइट रेज बाहर जाके कन्वर्ज हो रही है। ओके, और ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू विच डिफेक्ट? हाइपरमेट्रोपिया। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इंक्रीज इन द फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो गई आई लेंस की, फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो गई है आई लेंस की, तो क्या होगा यहाँ पे? फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से उसकी पावर डिक्रीज हो जाती है, और पावर अगर डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो पावर अगर डिक्रीज हुई है तो पावर डिक्रीज होने की वजह से वहां पे क्या होगा? लाइट रेज ज्यादा मतलब डिस्टेंस कवर करेंगी कन्वर्ज होने में। ओके, थर्ड केस में हम दोनों ही कंबाइन करते हैं कि कहाँ का उसको क्लियर दिख रहा है और इस पोजीशन का क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर लेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। ओके, दिस इज अवर नियर पॉइंट एन, जिसपे उसको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा था, दिस इज एन। ओके, जिसपे उसको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा था और जिसकी इमेज कहां बन रही थी? बियॉन्ड रेटिना बन रही थी। बट अगर दिस इज पॉइंट एन डैश, हमने इसको नाम दिया एन डैश इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे वो रीड नहीं कर पा रहा है, इस पोजीशन के ऊपर उसको ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है। बट इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा पीछे ऐसे लेके जाते हैं तो ये जो गैप बढ़ गया, यहाँ पे उसको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे एन डैश है, जहां पे उसको दिख रहा है, जो अब उसका एक्चुअल में नियर पॉइंट है, जहां पे उसको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट एन डैश ऑफ डिफेक्टेड आई, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, जहां पे उसको जिस पोजीशन पे उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाउ कैन वी करेक्ट दिस? तो हम सुटेबल फोकल लेंथ का लेंस या सुटेबल पावर का लेंस यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे ओवरकम हो सकते हैं इस डिफेक्ट से। और वो क्या होगा? देखो, हमें यहाँ पे पावर को बढ़ाना है, क्योंकि पावर अगर कम थी तभी तो लाइट रेज बाहर जाके कन्वर्ज हो रही थी, तो हमें पावर को यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और फोकल लेंथ भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो हम भी ऐसा लेंस यूज करेंगे जिसकी फोकल लेंथ क्या हो? पॉजिटिव हो और पावर भी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव होगी तो दोनों ऐड करके उसकी पावर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये लाइट रेज
अपनी रेटिना के ऊपर क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। क्योंकि हमने देखा था मायोपिया में क्या था कि लाइट जो लेंस था उसकी पावर ज्यादा थी, तो हमें कम करनी थी, तो हमने वहां पे कॉनकेव लेंस यूज किया। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, पावर भी नेगेटिव होती है। तो वो इस आई लेंस की पावर क्या थी, पॉजिटिव, और जो कॉनकेव लेंस हमने उसमें मायोपिया में यूज किया था उसकी क्या थी, नेगेटिव, तो उसकी पावर को डिक्रीज करने में हेल्प हुई। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज convex lens have positive power और this eye lens also have a positive power। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, पावर को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज होने से लाइट रेज है वो रेटिना के ऊपर इजीली कन्वर्स हो पाएंगी। ओके, ठीक है। This is corrective eye, corrective eye, corrected eye, this is our near point n। और सपोज उसको ऐसा लगेगा कि लाइट रेज पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सॉरी, एक बार हम रीड्रॉ करते हैं डायग्राम। वी कैन रीड्रॉ इट एज ओके। This is n dash और this point is n corrective eye और this distance is known as x dash। This distance is known as x dash। ठीक है, तो करेक्टिव आई में हम कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करेंगे, वो कि इसकी पावर को क्या करे, हल्का सा लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज होने के बाद वो कॉर्निया पे जाएंगी। कॉर्निया भी आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करने में हेल्प करता है। तो कुछ वो कॉर्निया पे भी कन्वर्ज होंगी और उसके बाद आई लेंस उनको अच्छे से कन्वर्ज करके रेटिना के ऊपर इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। तो उसके लिए और जो आप ये लेंस यूज कर रहे हो इसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का एक रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता था ये डिस्टेंस हमारा क्या है, नियर पॉइंट का तो है d, और जो ये जो एक्सटेंडेड नियर पॉइंट था इसका क्या था, x डैश। ये x डैश है, ये d है। ओके, तो x डैश क्या है हमारा, x डैश हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट एंड डैश of defective eye and dash of defective eye। okay, d क्या है, the distance of near point n for normal eye, distance of point or near point n for normal eye, for normal eye। ओके, और f is focal length of the lens, focal length of the convex lens to be used, so focal length of lens। okay, here object distance is minus d, ठीक है, due to sign convention we can take the minus here,
and image distance is minus x dash. Image distance is minus x dash. Okay. Now length formula is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. V is minus x dash minus and minus d. ओके, माइनस एंड माइनस डी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 बाय एक्स डी और प्लस 1 बाय डी. इसको आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स डैश डी एंड माइनस डी प्लस एक्स डैश. ओके, किसके इक्वल चल रहा है, ये 1 बाय एफ के इक्वल चल रहा है. ओके, तो 1 बाय एफ के जब ये इक्वल चल रहा है तो इसको आप दोबारा लिख सकते हो. दोबारा हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 बाय एफ इज इक्वल टू माइनस, चलो प्लस, हम एक्स डैश जो प्लस का वो आगे ले लेंगे, एक्स डैश डी. ओके, अब इसको रिवर्स कर लो क्योंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो रिवर्स किया तो ये आ जाएगा एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी. ओके, दिस इज द रिलेशन. और एक्स डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी. एक्स डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी बिकॉज डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां का उसे दिखना चाहिए था नॉर्मल. ठीक है, और एक्स डैश क्या है, जहां उसे अब दिख रहा है. ठीक है, तो वो एक्स डैश हमेशा क्या होगा, इस डी से क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी. तो इस फॉर्मूले से आप वहां पे लेंस की जो पर्टिकुलर जो आपको लेंस यूज करना है उसकी फोकल लेंथ आप यहाँ से फाइंड आउट करके पर्टिकुलर लेंस का आप फोकल लेंथ का लेंस आप वहां पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, और हमने देखो कई केसेस में तो ये होता है कि किसी पर्सन को मायोपिया है, दूर का नहीं दिख रहा, किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, पास का नहीं दिख रहा है. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ज्यादा दूर का भी नहीं दिखता और ज्यादा पास का भी नहीं दिखता. ठीक है, जिनको दोनों टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी. ठीक है, तो इन दोनों टाइप के डिफेक्ट्स को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बायफोकल लेंसेज हम यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लेंस हमारा होता है, जो स्पेक्स होगा उसके अपर पार्ट में कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव, जो कि दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो रहा था, जो कि मायोपिया को करेक्ट करेगा. ठीक है, और लोअर में क्या होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस. क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पास की चीजों को देखने में हेल्प करेगा, और पास में जब हम देखते हैं तो हमारी आईज नीचे होती हैं, तो नीचे इसलिए कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगेगा. और जब आप दूर का देखते हो तो आपकी आईज सामने होती है, तो ये ऊपर आपका कौन सा लेंस लगेगा, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगेगा. तो एक ही स्पेक्स में हम दोनों टाइप के लेंसेज वहां पे वो हो सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोफोकल लेंसेज वहां पे यूज होंगे टू करेक्ट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बोथ. जिस पर्सन को दोनों टाइप की बीमारी होंगी एक साथ, मायोपिया भी होगा, हाइपरमेट्रोपिया, तो दोनों को आप इस तरीके से वो करेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो लास्ट जो डिफेक्ट था आज का हमारा वो क्या था, प्रेस बायोपिया. और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई गॉड गिव्स अस 2 आईज इंस्टेड ऑफ 1, कि भगवान ने हमें दो आंखें क्यों दी हैं, एक भी दे सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं या बता सकते हैं कि एक आई से जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, जितना हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं वो हम 150 डिग्री तक देख पाते हैं, 150 डिग्री तक हम एक आई से क्लियरली देख पाते हैं. ठीक है, तो जब हमारे पास दोनों आईज हैं तो हम 180 डिग्री तक हम क्लियरली देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को. और इन क्लियरली जब हम देख पा रहे हैं, और हमें जो दोनों आईज की हमें जरूरत क्यों है, एक तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा बढ़ गया है. ठीक है, दूसरा कि एक आई से हमें ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल जो पोजीशन है उसकी वो क्लियर नहीं होती है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है एक्चुअली. ओके, तो यहाँ पे दोनों जब आईज हमारे पास हैं तो उनसे हम ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो भी हम पता लगा सकते हैं. दूसरी बात, यहाँ पे दोनों आईज की हेल्प से जो क्लियरिटी है इमेज की वो बढ़ जाती है. ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास 2 आईज हैं. थर्ड जो हमारा डिफेक्ट था वो था हमारा, क्योंकि लास्ट डिफेक्ट हमारा रह गया था, तो वो है हमारा प्रेस बायोपिया. ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड साइट. ओके, दिस टाइप ऑफ ये जो डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट अकर्स इन अ ओल्ड एज्ड पर्सन. जो हम कहेंगे भाई एज्ड जो पर्सन होते हैं, एज्ड जो लोग होते हैं, उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है मोस्टली. ठीक है, the defect presbyopia or old sight is the defect of vision due to which
A person cannot read and write comfortably. Person cannot read or write comfortably. Comfort, ठीक है, या इजीली लिख सकते हो आप, इजीली, ठीक है। पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट इजीली, ठीक है। ये मोस्टली एज जो लोग होते हैं उनमें होता है। और क्यों होता है, ये आप ये कह सकते हो कि शॉर्ट हाइपरमेट्रोपिया है। प्रेस बायोपिया किसका केस है, शॉर्ट हाइपरमेट्रोपिक केस है। क्यों, उसमें आपने देखा था कि दो कॉजेज होते हैं उसके हाइपरमेट्रोपिया के। एक तो क्या कि जो आपका आई बॉल है उसका साइज डिक्रीज हो गया है। दूसरा जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इसका भी वही कोज है। कोज इज, इसका एक ही कोज है, वो क्या है, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। बिकॉज काफी एज होने की वजह से हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो अपना काम थोड़ा कम करती हैं, कम करना कर देती हैं। तो उसकी वजह से जो आई लेंस है, ठीक है, वो अपनी जो फोकल लेंथ है उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता है। उसमें अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, अकोमोडेशन नहीं होगा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं होती है। वो क्या रह जाती है, इंक्रीज्ड फोकल लेंथ रह जाती है आई लेंस की। क्योंकि जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से वो अपना फंक्शन जो सिलेरी मसल्स का है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी वजह से ये डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग convex lens of suitable focal length, ओके। इसमें आई बॉल का कोई चक्कर नहीं है कि आई बॉल है वो फिक्स रहता है। आई बॉल में कोई चेंज वहां पे नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। जैसे हमने हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया था, क्योंकि उसमें भी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो रही थी और यहाँ पे भी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और एक हमारी आई में एक और भी हम कहते हैं कि डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। ये तो तीन तो मेजर डिफेक्ट्स थे विजन के जो कि किसी भी पर्सन को हो सकते हैं। इसके साथ ही एक डिफेक्ट होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट होता क्या है, ये हमारी आई के अंदर ही होता है, आई लेंस। और हम कहें कि इसके आसपास क्या होता है कि ब्लडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से, उस धुंधलेपन की वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो ये कैटरैक्ट जो डिजीज है ये इसकी वजह से वहां पे विजन जो है वो हमारा क्लियर नहीं रहता है। विजन कैन नॉट बी क्लियर, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। वहां पे ब्लडनेस रहेगी, हम कहेंगे धुंधलापन सा हो जाएगा वहां पे, ओके। तो दिस डिफेक्ट इज नोन एज कैटरैक्ट। और इसको जैसे हमने बताया था कलर ब्लाइंडनेस, वो करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। वो क्या होता है, इनहेरिडिटरी होता है और उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट कैटरैक्ट यहाँ पे करेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, ओके। कैटरैक्ट सर्जरी की हेल्प से ठीक हो सकता है, इसको हम क्योर कर सकते हैं, ओके। तो वहां पे क्या होगा, उसको सर्जरी की हेल्प से वहां पे जो ब्लडनेस आ रही थी, धुंधलापन जो था वो क्या हो जाएगा, वहां पे ठीक कर देंगे। या जो हमारा आई लेंस है, क्योंकि आई लेंस में ही वहां पे दिक्कत हुई है, तो आई लेंस को वहां पे रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं कि आई लेंस वो रिमूव करके वहां पे दूसरा आई लेंस है वो इंसर्ट कर दिया जाए। उसकी वजह से भी आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो यही थे हमारे कुछ इनसे रिलेटेड, और ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।